Today we will continue our previous topic, that is tenses. कल मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होते हैं. टेंस changes the form of the verb to express the time of an action. जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसके फॉर्म्स को, जो वर्ब के फॉर्म को जो है वो चेंज करता है अकॉर्डिंगली. अगर हम प्रेजेंट टेंस में काम करें, प्रेजेंट टाइम में काम करें, तो वो किस तरह से चेंज होगा, या पास्ट टाइम में हमने कोई काम किया है तो किस टाइप से, या हमें कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है, फ्यूचर में कोई काम करना है तो किस तरह से हमारे टेंसेस के जो है फॉर्म्स जो है चेंज होते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि आपको 3 बातों का ध्यान में रखना है. एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें आपको पता होना चाहिए विच वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड थिंग आपको जो याद करनी है वो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कोई भी टेंस करते हैं तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में सब में अकॉर्डिंगली जो है चेंज होता है. थर्ड थिंग जो है आपको याद करने, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो ये जो है मैंने कल आपसे डिस्कस करा था और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. तो आज जो है हम इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने टेंसेस करा था, ये मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, डिस्कस करा था कि टेंसेस जो है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है हम 3 में कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, कि वर्क which is done in the present time is called present tense, and or the work which is done in the past is called the past tense, and the work which is to be done in the future, that is called your future tense. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. तो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज योर ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 indefinite, continuous और imperfect, perfect and perfect continuous. तो सेम है कि indefinite. अब वर्ड से पता चल रहा है indefinite. The work is not definite, अनिश्चित, uncertain, right? Continuous और imperfect. It means क्या है, वर्क जो है हमारा, जो हमने पहले शुरू करा था, it is still continuing, अभी चल रहा है. That is called your continuous, or it is also called progressive tense. Right? Next is your perfect. When the work is perfect, जब हमने पूरा काम जो है complete कर लिया है, उसको बोलेंगे the 3 complete tenses or perfect tenses describe a finished action. जब हमारा काम जो है complete हो गया है और it is a finished action, जब हमारा काम खत्म हो गया है, then it is called perfect tense. Right? Next is a perfect continuous. It is a combination of 2 tenses. One is your perfect and second is your continuous. To combine the complete tenses and the incomplete tenses to describe an यहाँ पे देखो continuous क्या है आपका, incomplete है, it is still continuing. Perfect is your complete. तो दोनों चीजों का क्या है, it is a combination of complete and incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished. Right? तो ये 4 types के हैं. तो each tenses is further divided into 4. Let's see the next slide. There are 12 possible verb tenses. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 हो गए, 4 4 4 and total is your 12 tenses. तो यहाँ पे एक टेबल बना के आपको बताया गया है कि किस तरह से tenses को हम जो है डिवाइड करते हैं. तो first one is your present tense, second is your past tense and third is your future tense. And each tense, as I told you, each tense is further divided into 4. So present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Similarly, past indefinite, past continuous, past perfect continuous. And the next one is your future indefinite, future continuous, future perfect continuous. It means we have 12 tenses. कितने टेंसेस हो गए बच्चों? 12 टेंसेस. प्रेजेंट, जैसे अभी मैंने बताया था, द वर्क which is done in the present time. अब इसमें भी अलग अलग है. when the work is indefinite, जैसे मैं खाना खाता हूं, I eat food, या वह खाना खाती है, she eats food. तो टाइम क्या है यहाँ पे? is not fixed, is not definite, right? Then it is called present indefinite. Present time पे हम जो काम कर रहे हैं और वो जो है indefinite है, uncertain है, then it is called present indefinite tense. Clear?
फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग्स क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, शी क्या हो गया या सीता क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉन्ग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट टाइम पे आपका एक्शन है या वर्क है अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है, राइट, उसको बोलेंगे। जैसे शी इज राइटिंग अ लेटर, तो शी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इज योर हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग क्या हो गया आपका मेन वर्ब, और सॉन्ग क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। या ही इज राइटिंग अ लेटर, तो सारे काम क्या हो रहे हैं प्रेजेंट में चल रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मैं क्या कर रही हूँ पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रही थी, तो क्या हो गया वो पास्ट टेंस में पढ़ा रही थी, ठीक है, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो इसी तरह से हम वन बाय वन जो है सबको पढ़ेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम पे जो भी वर्क मैं कर रही हूँ, जो भी मेरा एक्शन है, अगर वो कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टाइम पे जो कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें क्या है मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क, राइट, शी हैज डन द वर्क। तो शी क्या हो गया बच्चों सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, डन क्या हो गया मेन वर्ब, डन द वर्क, वर्क इज योर ऑब्जेक्ट, तो शी हैज डन, या आप कह सकते हो हर वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। तो इस तरह से जो है परफेक्ट काम जो होगा हमारा कंप्लीट वर्क होगा, उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, वन इज योर परफेक्ट एंड सेकंड इज योर कॉन्टिन्यूअस। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको जो हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, इसमें हम बीन का यूज करते हैं, दोनों टेंसेस को जो एक वर्ड जो ज्वाइन करता है दैट इज योर बीन, राइट। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days। तो अगर कंफर्म नहीं होगा देन वी यूज फॉर, अगर कंफर्म होगा टाइम तो हम लगाएंगे सिंस। ये मैं आपको क्लियर करूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर जब हम ये वाला टेंस को करेंगे। तो सिमिलरली पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पे एक सिंपल टेबल दी गई है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में, प्रोग्रेसिव फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको जो है हम प्रेजेंट में पास्ट में क्या हमारे रूल हैं, व्हाट आर द रूल, कौन से रूल आपको फॉलो करने हैं, तो वो यहाँ पे दिए गए हैं, राइट। तो ए वन बाय वन हम जो है इसको क्लियर करेंगे, फिर विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल इसको और मॉडिफाई करेंगे। तो सिंपल आप एक जो है यहाँ पे कंक्लूडेड फॉर्म जो है यहाँ पे दी गई है टेंसेस की। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। right, या past indefinite, simple past, right, future indefinite और simple future tense। similarly इसको हम क्या बोलते हैं, और continuous, present continuous, past continuous, future continuous। simple है present perfect tense, past perfect, future perfect, this is your perfect progressive या perfect continuous। क्लियर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और उसके साथ हम यूज करते हैं एस और ईएस। अब इसके भी रूल होते हैं कि ही शी इट, क्या है बच्चों, ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। क्लियर। और
जो प्लूरल होते हैं हमारे यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसीलिए आपको बताया था हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ग्रामेटिकल पर्सन्स बताए थे कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेकंड के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं। तो ही, शी, इट, और यू कैन से सिंगुलर के साथ हम जो यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। एक्सेप्शन है कि आई जो है हमारा सिंगुलर होता है, बट वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम वहां पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख के दे देती, यहाँ लिखते हैं हम ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, राइट। आई, यू, भी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि ये सारे हमारे सिंगुलर हैं, ही, शी, इट सिंगुलर है, उनके साथ हमने क्या यूज करा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। बट यहाँ पे सारे प्लूरल है हमारे, यू, वी, दे, सेकंड पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन भी है और थर्ड पर्सन भी है। यू, वी, दे के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, बट आई जो है हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, बट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद दैट। जैसे अभी मैंने बताया था आई राइट अ लेटर, तो ही के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर। अब आप घर में जाके क्या करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी आपकी 8th क्लास है, जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस हैं जो हैं आप बना सकते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, ही ईट्स फूड, शी ईट्स फूड। जितने भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, सबके साथ जो है, या सीता, या मोहन, या माय फ्रेंड, ठीक है, उनके साथ जो है आप वर्ब की जो है फॉर्म को यूज करेंगे कि कहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस यूज करना है, और कहाँ पे हमें जो है, अब इसकी क्या है पहचान, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, तो जहां पे वर्ड में आता है खाना खाती हूँ, बट वी हैव नॉट मेंशन द टाइम कि मॉर्निंग में खाती हूँ या आफ्टरनून में है या इवनिंग में है, तो टाइम इज नॉट गिवन। तो ये क्या है, अनसर्टेन है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है। तो उसमें हम जो है खाना खाती हूँ, राइट, स्कूल जाती हूँ, कब जाती हूँ, इट इज नॉट क्लियर, राइट। तो वहां पे हम जो है क्या यूज करेंगे, एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और हम वर्ब के साथ जो है एस और ईएस का यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स बताए थे। आगे इसको और क्लियर करेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है, वर्ब कौन सा होता है, या ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, उसको भी और जो है क्लियर करेंगे। पहले हम रूल पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द रूल। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि हमारा जो काम है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, क्लियर, तो कोई भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूशन में है, राइट, तो उसके साथ हम यूज करते हैं, आई के साथ हम यूज करते हैं एम, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम ईटिंग फूड, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, ही, शी, इट। He is going to school. She is eating food. She is singing या सीता is singing a song. तो is किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, he, she, it के साथ आता है, और I के साथ am का यूज करते हैं, एंड प्लूरल we, you, they के साथ हम करते हैं you are going to school, you are eating food, कि तुम खाना खा रहे हो, राइट। तो इन सेंटेंस की क्या पहचान है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, बट इन प्रेजेंट टाइम। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में काम कर रहे हैं या भूतकाल में काम कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में देखना है कि अगर हमारा काम जो है प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूशन में है, अगर पास्ट में होगा तो क्या बोलेंगे, कर रहा था, राइट, बट अभी कंटिन्यूशन में तो मैं काम कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या होंगे सेंटेंस का एंड, रहा हूं,
क्योंकि मेरा काम जो है चल रहा है, कंटिन्यूशन में है, मैंने पहले शुरू करा था और अभी भी स्टिल इट इज कंटिन्यू, राइट। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं जो हूं पत्र लिख रहा हूं, मैंने पहले शुरू करा था और अभी भी मेरा चल रहा है, तो इनकम्प्लीट है अभी मेरा काम। इससे क्या पता चलता है, माई वर्क इज इनकम्प्लीट, राइट। सिमिलरली इज ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, तो अभी भी उसका काम जो है क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं, अभी भी जो है वो कंटिन्यूशन में है। ये दे आर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, वे मार्केट जा रहे हैं, राइट। तो और क्या लगता है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो एम लगता है हमारा आई के साथ, ये लगता है हमारा ही, शी, इट के साथ, और आर लगता है हमारा यू, वी, दे के साथ, ठीक है। और इसके साथ बच्चों क्या लगाते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे मैंने आपको यस्टरडे आई टोल्ड यू कि आईएनजी फॉर्म होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारी मिलके बनती है। जैसे दे आर या आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइट क्या हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें आपको आईएनजी लगाना है, तो क्या बन जाएगा, राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहीं पे ये जो है इट इज रिटन हियर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्लियर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आई किसके साथ लगेगा बच्चों, एम के साथ। आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, और इट इज रेनिंग, और यहाँ पे क्या आएगा, यू आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर, एंड दे आर राइटिंग अ लेटर। इट इज वेरी सिंपल, क्लियर। अगर आपको ये रूल याद हो जाएंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट, कोई भी कंपोजिशन लिखना है, ये लेटर राइटिंग करना है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ कंपोजिशन और लेटर, राइट। या क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, अगर मान लो कभी होता है ना माइंड में आ गया हिंदी में, अरे मैम ने ये बताया था, तो यू कैन ट्रांसलेट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं कि मैं काम कर चुका हूं, कि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, मैं काम कर चुका हूं, राइट। तो मैं काम कर चुका हूं, तो क्या होगा, आई हैव डन माई वर्क, या मैं अपना काम कर चुका। अगर एक है सिंपल, मैं काम कर चुका हूं, तो आई हैव डन द वर्क। एक है मैं अपना काम कर चुका हूं, तो आई हैव डन माई वर्क, दे हैव डन देयर वर्क, वी हैव डन आवर वर्क, राइट। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। अगर ही शी इट की बात करें तो उसके साथ हम लगाते हैं हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। डू, डिड, डन, सिंग, sang, sung, राइट, रोट, रिटन। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, बोला था कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो हैं प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। टेंसेस में बहुत जो है, क्योंकि एवरी टेंस में जो है हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है यूज करते हैं, तो आप लोगों को जो है, तो आपको पता चला होगा कितना इंपॉर्टेंट रोल है टेंसेस में, राइट। तो हम किसके साथ हैव यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ही, शी, इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई किसके साथ यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे, और हैज हम यूज करते हैं ही, शी, इट, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अभी मैंने बताया आई हैव डन माई वर्क, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। आई हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। यू हैव संग अ सॉन्ग, गाना गा चुके हो, मैं गाना गा चुकी हूँ, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, आई हैव डन, या आई हैव रिटन अ लेटर, कि मैं पत्र लिख चुकी हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि कोई भी सेंटेंस है वो मेरा परफेक्ट है, कंप्लीट है, कि मैंने फिनिश कर चुकी हूँ मैं अपना काम, मैं पत्र लिख चुकी हूँ, परंतु किसमें लिख चुकी हूँ, कौन से काल में लिख चुकी हूँ, तो वो है अभी मेरा क्या चल रहा है, प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में मैं काम जो है कर चुकी हूँ, क्लियर, ठीक है। और अभी हम फर्दर जो है सेंटेंस करेंगे कि
एफर्मेटिव में क्या करते हैं हम, नेगेटिव में क्या करते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू का या डस का यूज किस तरह से करते हैं, वो हम आगे क्लियर करेंगे वन बाय वन, राइट। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म्स। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये हमारा परफेक्ट है, ये हमारा इनकम्प्लीट है, इसमें हमने टाइम नहीं बताया है। ये वाला काम हमारा बिल्कुल परफेक्ट है कि मैं अपना काम जो हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ वो जो है क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने अपना काम कर चुकी हूँ। क्लियर। नेक्स्ट इज योर परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस, और इन दोनों को जो है कौन सा वर्ड मिलाता है, दैट इज योर बीन। और यहाँ पे वही हमारे आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की यूज होती है। तो परफेक्ट और दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है दैट वर्ड इज योर बीन, BEEN। इसमें क्या होता है कि मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ, कि काम मेरा कोई चल रहा है 2 घंटे से और अभी भी जो है वो चल रहा है। तो इसमें टाइम की भी जो है गिवन रहता है, टाइम इज फॉर और सिंस का हम यूज करते हैं। तो वो जब हम सेंटेंस करेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि सिंस कहाँ यूज करते हैं और फॉर कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि फॉर और सिंस में। तो जब हम करेंगे देन आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। अब हैव बीन हम कहाँ यूज करते हैं, सिमिलरली जैसे अभी हमने बताया था आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं। हैज बीन यूज करते हैं हम ही शी इट, उसके साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, राइट। या यू कैन से आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जैसे आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब यहाँ पे 2 घंटा जो है क्लियर नहीं है। अगर मैं 2 o'clock करूंगी, सिंस 2 o'clock, तब मैं लिखूंगी सिंस 2 o'clock, क्योंकि मैं कंफर्म बता रही हूँ ड्यूरेशन, कंफर्म टाइम बता रही हूँ, पॉइंट करके बता रही हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम बता रही हूँ कि 2 बजे से कर रही हूँ, तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर मैं 2 दिन से या 2 घंटे से बोलूंगी तो देन वी विल यूज फॉर, क्योंकि अनसर्टेन है। मतलब 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, सुबह के हैं, शाम के, दोपहर के हैं, कल के हैं, इट इज नॉट क्लियर, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे इसी तरह से यूज करते हैं, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, या आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock, राइट। ऐसे ही और शी के साथ ही हैज बीन, शी हैज बीन, और राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि हमें जो है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो वर्ड ज्वाइन कर रहा है दैट इज योर बीन, BEEN, बीन, राइट। तो आई होप प्रेजेंट टेंस जो है उसके रूल जो है आपको क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस को जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम किसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, या वो हमारा फ्यूचर टेंस हो, तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, सिंस और फॉर, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे जब हम सेंटेंसेस करेंगे एग्जाम्पल से करेंगे तो तीनों टाइप के करेंगे, अफर्मेटिव में या पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे चेंज करते हैं, या हमारे जो नेगेटिव होते हैं उसमें नॉट लगाते हैं, कहाँ हम डू नॉट लगाते हैं, कहाँ हम डज नॉट लगाते हैं, वो हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किस तरह से जो है हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है एफर्मेटिव में यूज करते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट का यूज करते हैं, आई हैव नॉट, यस शी हैज नॉट, राइट। और परफेक्ट फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। किस तरह से जो है वहां पे हम क्या लगाएंगे, नॉट का लगाना है, सॉरी यहाँ पे हमने एम और इज आर का कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई एम नॉट, या ही इज नॉट, या यू आर नॉट, तो आर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, देन हम जो लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, तो दोनों के बीच में हम नॉट का लगाते हैं। सिमिलरली इन द परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट टेंस में हम
आई यू वी दे हैव नॉट डन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करते हैं, तो सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। ये अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, आई हैव नॉट बीन, शी हैज नॉट बीन, तो यहाँ पे बीन लग जाएगा आपका और आईएनजी फॉर्म को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट इज योर पास्ट फॉर्म। अब पास्ट फॉर्म में क्या है, हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं। इसमें सिंपल सा है, आपको ये नहीं देखना है कि ही शी इट के साथ क्या यूज करना, आई यू वी दे के साथ क्या यूज करना, सबके साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। आई यू वी दे, और ही शी इट, सबके साथ आपको एक ही फॉर्म को यूज करना है। आई रोट अ लेटर, राइट रोट रिटन, आई रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, राइट, वी रोट अ लेटर। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सबके साथ जो है फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, आपको क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्योंकि ये क्या है, पास्ट में है। मैंने खाना खाया मतलब पास्ट में खाया, खाना खाता हूं तो क्या है, प्रेजेंट है, खाना खाया, आई एट फूड, राइट। तो ये जो भी काम हमारा चल रहा है वो पास्ट टाइम पे चल रहा है। पहले हमने कौन सा काम करा था, जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे चल रहा था। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूअस, जो इससे पहले हमने करा था वो जो हमारा काम चल रहा था वो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा था। अब जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है, पास्ट टेंस में। ये प्रेजेंट टाइम पे चल रहा था, ये क्या है, पास्ट टाइम पे चल रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज और वर कहाँ कहाँ यूज करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस है, ही शी इट के साथ, ही शी इट। अब एम का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम के साथ, एम के आई के साथ हम एम यूज करते हैं, बट अब हम आई के साथ क्या यूज करेंगे, वॉज। क्या यूज करेंगे बच्चों, वॉज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली यू वी दे, यू वी दे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, तो आर की जगह क्या यूज करेंगे, वो, और सेम आईएनजी फॉर्म को आपको यूज करना है। तो बच्चों हमने टेंसेस पढ़े और क्या क्या डिफरेंस है, क्या रूल है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट के जो है मैंने आपको 4 जो है टाइप्स बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके क्या रूल हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ या सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हमें कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, ये मैंने आज आपको बताई है। आप जो है घर में जाके अगर आपकी समझ में आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो हैं उसको लिखें, और अभी हम जो है इसको बाद में जो है और भी मॉडिफाई करेंगे और क्लियर करेंगे आप लोगों को, जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस